ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਮਸਕਾਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਧੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਘਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਔਰਤ, ਜੋ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸੋ ਖਿਚੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ women can just only speak English and some can speak in just Hindi, so this gonna be mix like program like khichdi, so enjoy this program and program ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰੂ ਭਾਂਬਰੀ ਜੀ। ਨੀਰੂ ਭਾਂਬਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। PhD CNMT APRT ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਕਾਲਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਟਿਪਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੂਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਗ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਟਿਪਸ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ ਜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੂਮਨਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੁੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜਨਾ, ਮਿਸ ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ IALI ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜਾ ਸਿੱਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮਿਸ ਪਰਫੁਲਬਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਟੂ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗ ਜੀ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਪਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਸ਼ੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜਗ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਵੂਮਨ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ
woman to woman, men are allowed, because if men don't listen, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਚੱਲ ਬਈ ਇਹ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਗੇਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕੇਗੀ। ਖਿਚੜੀ ਤਾਂ ਪੱਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਖਾਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਵੈਨ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਅ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ। ਇਵਨ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ IAS ਆਫਿਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸਰਵ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਪੀਪਲ। what is the goal of life? The goal of life is कि अपने आप ਨੂੰ ਸક્ષਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, you just have to be ambitious yourself and willing to do what's good for you and other people without putting other people down। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਕੈਂਸਰ ਵਾਸ ਜਸਟ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਲਾਈਟ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਸੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਐਨ oncologist ਬਣੇਗਾ, oncologist ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ। ਸੋ ਆਮ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਨ ਬੋਥ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, जीवाइन स्पेशलिस्ट, कोलन स्पेशलिस्ट। सो मैं चाहती हूँ कि मैसेज, एक तो मैसेज है, just be there and do hard work with honesty and keep your goal। ਜਿਹੜਾ ਵੀ goal ਤੁਸੀਂ honesty, persistence, hard work ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ recognize ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। People will put you down, so don't worry about that, because you have to take pride in your own work, not in somebody else's all the time wah-wah। People will definitely say, oh, they can, whatever it is that. But if you're persistent, sooner or later, people will know how good you are. They will recognize you and they will come to you. You don't have to go to them. So ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਬਾਕੀ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, प्रफुल्ल जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ गए ने। प्रफुल्ल जी स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, बहुत बहुत थैंक यू जी। के अंदर आपकी वेट कर रहे थे हमारे सब दर्शक। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं नीरू जी की तरफ। नीरू जी आप बताएं, अपनी इंट्रोडक्शन भी दें सबको पहले, क्योंकि मेरे लिए तो शब्द कम पड़ रहे थे। आप बेटर बता सकती हैं। थैंक यू प्रीत कौल जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर, एंड आई एम वेरी हम्बल एंड ऑब्लाइज। आपने मुझे निमंत्रण किया इस वुमेन एम्पावरमेंट का ग्रेट पैनल के लिए, एंड मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सभी प्रीतनामा के सारे दर्शकों को हेलो, नमस्कार और सत श्री अकाल। मेरा नाम जैसे प्रीत कौल जी ने बताया, आई एम डॉक्टर नीरू बामरी, एंड आई एम अ वेरी प्रोफेशनल वुमेन इन एजुकेशनल, साइंटिफिक फील्ड and also in medical field। मैंने अपने my background is I've done my PhD and got a very prestigious award from Baba Atomic Energy Center for during my PhD, and I also published lot of research papers जो कि काफी scientific journals में यहाँ अमेरिका में publish हुए हैं। This is my background of educational and background। मेरा USA में जो कैरियर का है experience,
मैंने यहाँ पे आके डिग्री की रेडियोलॉजी की CNMT ART and I became supervisor of nuclear medicine department for 25 years in South Shore Medical Center। और ये मेरा हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस था बहुत बढ़िया था। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क विद डिफरेंट डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, बूढ़े लोग, बच्चे लोग, नियोनेटल सारे। तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस और मेरे को मौका काफी मिला टू गेट मतलब एडजस्टेड टू वर्क विद डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन। तो ये था मेरा कैरियर। और इस कैरियर के साथ मैंने क्या अचीव किया, इस कैरियर के साथ आई गॉट लॉट ऑफ ऑनर्स एंड अवार्ड्स एंड साइटेशंस फ्रॉम टाउन एंड काउंटी। मैं काफ़ी इन्वॉल्व रही हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ILA में मैं 5 साल रही हूँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें मैंने काफ़ी कुछ किया। मैंने सीनियर फोरम किया, प्रोफेशनल फोरम में मैं चेयरपर्सन रही हूँ, किड्स फोरम में रही हूँ। आई टुक दिस फोरम्स टू अ वेरी डिफरेंट लेवल विद माई एक्सपीरियंस। मैंने पहली बार एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी शुरू किया था बच्चों के लिए, जिसका नाम था चाइल्ड एनरिचमेंट प्रोग्राम, जहां मैंने बच्चों को साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स किए और उनको free tuitions to improve their grades and to improve their scores for SAT program. And then I was also associated with Rotary Club. I was now I am as elected vice president in ILA. I am a secretary in IDP India Day Parade। मुझे अपनी कंट्री से पेट्रियाटिक बहुत पसंद है, तो मैंने IDP ज्वाइन की फॉर इंडिया डे परेड, वेयर आई वाज अ जॉइंट सेक्रेटरी। एंड इन 20 I got Women Empowerment Award for South Asian Activities Organization। अभी ये सारी चीजें एक औरत होके यहाँ पे मैंने अचीव की, और ये मैंने कैसे की, ये सीढ़ियों पे मैं कैसे चढ़ी, तो ये मैं आपको अपनी कहानी पर बताना चाहती हूँ। I was born in Africa, Nairobi, and I must be about 10 years old। And when I moved to India, जब मैं इंडिया आई, Punjab, Ludhiana, it was a nightmare for to adjust to two different adverse things। We are 4 sisters and 1 brother। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा भाई सबसे छोटा है। सो उस जमाने में पंजाब में लड़कियों को एक मदर की 4 बेटियां और बेटा नहीं हुआ था। इट वाज लोग कहते अच्छा लड़की हैं क्या करोगे। मेरे चाचा जी के 4 लड़के थे। सो इट वाज लाइक अ वेरी अनऑकवर्ड सिचुएशन विच आई वाज फेसिंग अ लॉट। तो अब लड़का वहां हो तो लड्डू बांटते हैं, लड़कियां हो तो इट इज लाइक ओ बेचारी क्या करेगी, मेरी मम्मी 4 लड़कियों की माँ है। तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था। तो मेरे को बहुत एक बड़ी अच्छी मेमोरी याद है। मेरा पहला जन्मदिन इंडिया में जब हुआ, मैं 10 साल की थी, बड़ी एक्साइटेड, बड़ी नहा धो के तैयार हुए। तो मैंने कहा बर्थडे कहाँ मनाना है। वो कहते, मेरी चाची है, अंकल आंटी कहते लड़कियों का बर्थडे वो तो मनाते नहीं यहाँ पंजाब में, वो भी जिसके 4 बेटियां हो। ना ना ना, बिल्कुल। मेरा जो एक्साइटमेंट था बिल्कुल जीरो हो गया। तो मैंने कहा, उस दिन से मैंने ठान लिया कि एक लड़की भी बेटे से ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो मैंने फिर अपना शुरू किया कैरियर, मैंने अपने शुरू की पढ़ाई, एंड आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज। तो मैंने BSc कर दी। मेरी मम्मी कहते 4 बेटियां हैं, लड़की की शादी कर दो और विदा कर दो। बट आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज। मैंने एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट दिए एंड आई पास फॉर पूना मेडिकल फोर्स फॉर मेडिकल कॉलेज। मेरे दादाजी ने लड़की नु तो बाहर नहीं भेजना, ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आई वॉज इन टीयर्स and I said fine, I will carry my locally study in Ludhiana, and I did my luckily MSc। टीचर्स मेरे घर पे आए, पेरेंट्स को बोले नहीं कुड़ी पढ़न वाली है, PhD कर लो। आई गॉट फेलोशिप अपने खुद एक्सपेंसेस में, बिना खर्चे पेरेंट्स का किया हुआ। I got the degree and I got a lot of exposure to do scientific international conference and mingle with international scientists to get confidence। तो ये था मेरा सफर for the college life। Now coming to my studies when I came to New York after I got married। New York में आई तो I got married। I was this thing was twofold duties: go to work and manage the household। Okay, तो मेरा जीवन यही हो गया, बच्चों को देखना और हाउस होल्ड करना। एंड फाइन, आई वाज totally dependent on my husband, taking care of banking, taking care of finances, taking care गाड़ियां ठीक करानी, गैस दिलाना। तो I was enjoying life with the kids, and he was taking care of all the other activities and all the responsibilities of the house। पर एक दिन मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लाया कि एक
वक्त का पहिया चला और मेरे को ऐसे नीचे गिराया कि मुझे कुछ पता ही नहीं लगा, एक पल में मेरी जिंदगी बदल गई। आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन 2014। मेरे को लगता है जिंदगी का अंत हो गया, मेरे को यहीं मर जाना चाहिए। मेरे बच्चे कॉलेज में जा रहे थे और आई डिडंट न्यू व्हाट टू डू। उस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस भी ऐसे हुए कि इकोनॉमी ऑफ द कंट्री वेल डाउन, हॉस्पिटल्स वर शटिंग डाउन। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। घर पे चिट्ठियां आने लगी, आई डिडंट न्यू व्हाट टू डू। घर में चिट्ठियां आने लगी कि कुछ बिल पे ही नहीं हुए, पेनल्टीज आने लगी। आई डिडंट इवन न्यू कि टैक्सेस भी जाते हैं, मॉर्गेज का देना है, वो करना है। लेटर्स, बिल्स स्टार्टेड पाइलिंग अप एंड आई डिडंट न्यू व्हाट टू डू। मेरा पहला चेक मैंने लिखा, वो भी मेरा बाउंस हो गया। मैंने वो जो चेक लिखा, मैंने मेमो की साइड लिख लिया, बिकॉज आई हैड नो ट्रेनिंग, यू नो, दो आई वाज एजुकेटेड बट आई वाज सो मच डिपेंडेंट ऑन द अदर हाफ कि मेरा पहला चेक भी बाउंस हो गया मेमो का, और वो भी टैक्सेस का। आई हैड टू गो टू द कोर्ट, आई हैव टू फाइंड इट आउट एंड दे ट्रेन मी। ना मुझे बैंकिंग आती थी। गेस व्हाट, गैस भी हस्बैंड पढ़ा रहे थे। मैंने जब पहली बार, हंसी आएगी, गैस डाली तो डीजल डाल दिया। जब डीजल डाल दिया तो गाड़ी चली नहीं। आई टू टेक टू द डीलर टू गेट इट रिमूव्ड एंड इट कॉस्ट मी $2000 टू गेट द कार क्लीन। तो दैट मीन्स कि हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं होता जिंदगी का क्या मोड़ होता है, राइट? तो मैंने कहा कि नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिप्रेशन, लेट मी स्टैंड ऑन माई फीट एंड गो। ड्रॉज खोले, बिल्स निकाले, स्टार्टेड गोइंग टू द बैंक्स में जाके दोस्ती की मैनेजरों के साथ। उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे कर लो, ऑनलाइन हुआ, गॉट पासवर्ड्स। कोई भी औरत, अपने हस्बैंड ही सारा काम करता है, ऑल द पासवर्ड्स आर विद हिम। अच्छा आप कर दो, ये कर दो, ऑन कर दो जीमेल। I could not access to some of the files in my own computer, which were very, very important, क्योंकि पासपोर्ट तो उनके पास ही था। Then I said, I wrote a diary. हर एक फेस टाइम का, गूगल का, ईमेल का, सबके पासवर्ड्स एक जगह लिख दे कि कल कुछ हो तो बच्चों को मालूम है हाउ टू एंटर एंड एक्सेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड डू इट। तो ये सब मैंने खुला। आई गॉट बजट में सारा अपना प्लान किया। आई गॉट एवरीथिंग ऑर्गेनाइज इनटू द बजट फॉर एवरी मंथ एंड आई स्टूड ऑन माई फीट। अभी अकेलापन एक औरत अभी खड़ी तो होगी, अपना खर्चा वगैरह सब दाल पानी करने लग पड़ी। तो नाउ हाउ टू फिल द लोनलीनेस। बच्चे सेटल्ड and they are away, or you cannot go into depression which affects your health. So I started joining community. I became members of different organizations like Rotary, IDP. I made a lot of friends. I got engaged with those activities, and when I got engaged with the activities, I got experience. वही experience मैंने community को वापस देना शुरू कर दिया, और वही कुछ friends भी बनाए। And so this was my journey about it. Now, guess what? लड़कों को वहां पे इंडिया में कितनी आजादी होती है। ओके, घर लेट भी आ सकते हैं, ओके आप हॉस्टल में भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लड़कियों को जल्दी आना, ये करना। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज। आई रिक्वेस्ट ऑल वुमेन, प्लीज हाथ जोड़ के मैं आपको सबको विनती करती हूँ कि दो यू हैव ए फैमिली लाइफ, योर हस्बैंड, प्लीज ट्राई टू गेट यूज्ड। आजकल टेक्नोलॉजी है, सब जगह लाइब्रेरी में सिखाते हैं। एटलीस्ट आप कुछ ईमेल्स डालना सीखें, टेक्नोलॉजी सीखें। एवरीथिंग इज अवेलेबल। हस्बैंड के साथ मिलके काम करो, विद द स्पाउसेस, ईच अदर, शेयर ईच अदर, एंड सो यू कैन बिकम इंडिपेंडेंट। एक नारी, एक ऑर्डिनरी आर्य जिसने एजुकेशन नहीं ली है, वो भी एक रसोई घर चला सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, कम बजट में वो अपना घर चला सकती है। और ये है नारी शक्ति महान है। अनपढ़ औरत भी घर चला लेती है, अगर पैसे नहीं है वो एक ही दाल रोटी सब्जी कर सकती है, वो घर चला सकती है। दैट मीन्स नारी शक्ति बहुत महान है, वो कुछ भी कर सकती है। वो लुक एट our this thing, Kamala, look at our right now, Kamala, औरत ने इतनी तरक्की की है. Look at our example, Kamala Harris. She has the Indian woman, the woman here has left no barriers. Kamala Harris, right from the ground, the first PM representing big country like US. And from the ground, the woman has raised to the sky, up in the space, like, what do you call, apni choti Kalpana Chawla. She has reached the space. So the woman from the ground, like Harris, Kamala Harris, up to the sky for the woman. तो औरत कुछ भी कर सकती है. So my motto to all the women is,
कि वर्क हार्ड, एक वुमेन की तरक्की होती है दूसरी औरत के लिए इंस्पिरेशन के लिए, कि अगर वो कर सकती है, जैसे जग कालरा जी एक कैंसर डॉक्टर हैं और कोई नहीं आया है कंट्री में, ओके मैं तो खाना बनाना, मेरे पास को तो कुछ आता नहीं है, मैं तो खाना बना के अपना पेट भर लूंगी, नो, देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ओवर हियर, टेक सम लोन्स, गेट सम एजुकेशन, स्टार्ट वर्किंग, कल तुम्हारी रिटायरमेंट होगी, यू विल गेट सम पेंशन, यू विल गेट सम सोशल सिक्योरिटी। अगर आप ऐसे काम करोगे तो बुढ़ापा कैसे निकलेगा? सो वन, एक औरत अगर शी राइजेस इवन बाय people who throw bricks on her. So my motto for everyone is कि let's work together, lift the people, and the success of every woman is by inspiring other women. We should raise each other like our sister siblings. मेरा एंड में सब दर्शकों को एक ही मैसेज है जो मेरी जिंदगी का मोटो बन गया है, और मैं हमेशा वही लिखती हूँ हर में, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स विथ स्ट्रेंथ, humbleness and politeness. We wish every woman to stay tall in society and fly very high with your wings. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, and I hope you will be having inspiration from this talk. Thank you. नीरू जी बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई आपकी जो लाइफ स्टोरी है इट्स वेरी इंस्पायरिंग, और आपकी ये बात कि जिस दौर में आपने सफर शुरू किया, वाकई में I wasn't born that time too, but I know my parents told me everything कि वुमेन्स के लिए उस समय में अपना एक मुकाम बनाना, घर से इवन एजुकेशन, आप तो बर्थडे की बात करें, एजुकेशन लेना भी औरत के लिए पॉसिबल नहीं था। बहुत सी औरतें चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, और जिनकी फैमिली कुछ एजुकेटेड थी वही अपना मुकाम बना पाई हैं। ठीक है, वेरी हैप्पी टू हियर एवरीथिंग अबाउट यू, एंड आई होप कि सबको इस बात से बहुत इंस्पायरेशन मिलेगी कि आप अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपके अंदर कुछ अच्छा करने की इच्छा है। तो हम चलते हैं डॉक्टर रोज को राजविंदर जी की तरफ। राजविंदर जी, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੂਮਨ, ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੂਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਨੋ, she is a single woman. As a single woman, what she doing great job is not easy for any single woman. So Roji, please. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। I was in medical profession. I have done so many jobs in my life. So I drove taxi too. And then ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। That's true. So I travel many countries. I just like work everywhere. So then last ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਡਿਗਰੀ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। 16 year I work there, right? And then ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੌਬ ਛੱਡੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਨੀਫਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰੱਗ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਡਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਭਰਾ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਡਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਸਪੋਕ ਵਿਦ ਬਰੁਕਲਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੁੱਡਹਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇਣਾ, ਘਰੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, that was I was immune, so I was not even scared, my life was bonus. So when I got corona, I just pray to God, I said, God, if you give me life, is for people, just for people, this is a bonus. So ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੋ ਜੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ ਠੀਕ, ਹਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੂਮੈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਵੂਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਆ, ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਬੇਬੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀਓ ਮਾਤੋ, ਮੇਰੀਓ ਬੱਚੀਓ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਜਸਟ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਿੰਗਲ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਘਟਾਓ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੱਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਣਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ 10-12 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਲਾ ਲਓ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦਿਸ ਦੈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਆ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 8-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 2-3 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਸਿਪ ਕਰੋ, ਬਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੀਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ
ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਵੋਗੀਆਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਗੀਆਂ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ? ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਾ ਬਣੋ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੋਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੇ, ਫੋਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲਾਈਫ ਮੈਸ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ चीज ਦੇ बेनिफिट भी है और हर चीज के नुकसान भी है। अगर जी उसको हम जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं तो बेनिफिट है। जी वो तो शराब जैसी चीज जिसको हम हानिकारक बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अगर एज ए मेडिकल हम जो लोग एक डॉक्टर के मुताबिक यूज करें तो उसका बेनिफिट भी है, राइट? सो इस तरह से ये फोन में जो सोशल नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, इसको हम कायदे से जरूरत के मुताबिक यूज करते हैं तो इसका बेनिफिट है। दूर देश बैठे लोगों को मिला रहा है, दुनिया को छोटा कर दिया है, लेकिन घर के घर भी तोड़वा रहा है। जब हर बात आप अपने माताओं से घर की शेयर कर रही है, हर बात आस बाजू में शेयर कर रही है, छोटी छोटी बात की, मैंने क्या खाया, मैंने ये किया, मेरे बाप ने मेरे ससुर ने ऐसा बोला, मेरी बहन ने ऐसा बोला, मेरी सास ने मुझे ये बोला, तो वो घर तोड़वाता भी है। सो रोज ये बहुत अच्छी बात है कि फोन का इस्तेमाल लिमिटेशन के लिए करे, खुशियां बांटने के लिए करे, गम देने के लिए, घर तोड़ने तोड़वाने के लिए ना यूज करे। तो हम जी लोग जी करते हैं प्रफुल्ल जी की तरह। प्रफुल्ल जी जो है, इनकी इंट्रोडक्शन, जैसा मैंने कहा, इनकी इंट्रोडक्शन भी बहुत बड़ी है। एक तो असेंबली वोमेन है, फिर ये डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी बिजनेस रिलेशन इनकी डायरेक्टर हैं, उसके अलावा हेल्थ लाइन में भी हैं। और हम इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं, और इनकी इंट्रोडक्शन ये खुद शेयर करेंगे। हाँ जी प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी पहली बार आए हैं हमारे साथ इस मंच। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और दूसरी आपकी इंट्रोडक्शन मैं कम दे सकती हूँ, आप ज्यादा दे सकते हैं अपने बारे में, क्योंकि आप जो कर रही है वो काबिल तारीफ है। और गुजरात, आप गुजरात से बिलोंग है ना? जी तो ये इनके तो वैसे ही क्रिएटिव माइंड सुना है कि आप देख रहे हैं मोदी जी क्या कमाल कर रहे हैं। सो प्रफुल्ल जी आइए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रीत जी, मुझे इनविटेशन देने के लिए यहाँ आके। और मेरी भी एक कहानी है, जैसे नीरू जी ने बोला, रोज जी ने बोला कि हम सब एक वुमन है, स्त्री है, और हम इंडिया से आ रहे हैं, तो हमारा कल्चर अलग है। हम इस देश में आके जो कर रहे हैं वो बात अलग है, पर जहां से हम आए हैं, जिस दौर से हम गुजरे हैं, वो बात अलग है। मैं अपनी कहानी सुनाऊं। जैसे मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, छोटे गांव से, और एक राजपूत घराने से होने से, राजपूत घराने की बेटी होने से बात अलग होती है। और मैं जब 6 साल की थी तब से मेरे फादर नहीं है, तो मेरी माँ ने मेरा 2 रोल किए हैं, कि बाप का और माँ का, बच्चों को उछेर करने में। तो हम 6 भाई बहन थे, तो मैं सबसे छोटी थी। तो जब छोटा है ना, तो सब लोग सर पे टपली लगा के चलते हैं, उसी तरह से और लड़की है, गांव में है, तो बात अलग होती है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले, जैसे जैसे बड़े होते गए, तो मेरी माँ ने बोला कि क्या करना है, क्योंकि गांव में तो 4-5 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई थी। तो मैंने बोला कि मुझे पढ़ना है, तो फिर मेरे मामू के घर भेजा। फिर वहां से मेरी माँ ने बंदोबस्त करके बोला कि चलो बोर्डिंग स्कूल में बिठाए, तो वहां पे पढ़ सकती है सिटी में, क्योंकि हम छोटे गांव में रह रहे थे। तो जब मुझे बोर्डिंग स्कूल में एडमिट कराया, तो वहां पे सारी राजपूत गर्ल्स ही थी, क्योंकि हम लड़कों के साथ नहीं पढ़ सकते थे, राजपूत होने की वजह से, लड़की होने की वजह से, और एक गांव की लड़की होने की वजह से मान मर्यादा, जो औजल मर्यादा रखना है वही करना है। तो उसी के मुताबिक बोर्डिंग स्कूल में मुझे एडमिशन दिलवाया। वहां पे मैं गई, पहली बार गई घर से बाहर,
और जहाँ पे मैं गई वहां पे सारी लड़कियां अलग अलग जगह से थी, और वहां पे हमें रहना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना सब कुछ वहां पे हमें अपना सारा कुछ संभालना है, कपड़े, बेड से अपना कमरा, जो भी करना है। तो धीरे धीरे सीखने लगे। तो वहां पे हमारी जो वार्डन थी, मैं अभी बता रही हूँ लोगों को कि जब मैं छोटी थी तो मेरी बहन यहाँ पे अमेरिका में थी, तो हमें चांस था कि हम यहाँ पे आ सके फैमिली की वजह से। तो उनको पता चला कि मुझे अमेरिका जाना है बाद में, पर मैं पढ़ाई में थी, अभी बच्ची थी। तो हमारे ही लोग मुझे सर पे ऐसे बाल घुमा के बोले कि ये गांव की छोरी है, अमेरिका जाके क्या करेगी, और एक गांव की धूल की तरह है, वो अमेरिका की बड़ी बड़ी शहर में क्या करके बताएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे लोग बोलते थे। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में एक चोट लगी, पर वो अच्छी थी चोट, क्योंकि जब आप किसी से वो लेते हैं तो आप बुरा मत माने, और आप चैलेंज की तरह उठाइए कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में एक अ, जुनून सा आ गया जब उन्होंने मुझे बोला कि ये गांव की छोरी है, एक धूल मिट्टी से आने वाली लड़की अमेरिका जाके क्या करेगी, और मेरे बाल बिखेर दिए और बोले कि ये तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार लड़की है। तो उसी टाइम पे मैंने तब मैं 5th ग्रेड में थी, बहुत छोटी बच्ची थी। मैंने एक चैलेंज उठाया कि चाहे कुछ भी हो जिंदगी में, एक स्त्री होने के नाते, एक राजपूत नारी होने के नाते, और जब मैं गांव की लड़की हूं तो लोग मुझे ऐसे बोल के क्यों चाहे। तो मैंने एक चैलेंज उठाया अपने आप मन में, किसी को नहीं बोला। अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं है। अपने आप को एक चैलेंज उठाया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो पढ़ाई की, आगे पढ़ाई में इतनी अच्छी भी नहीं थी, इतनी बुरी भी नहीं थी, पर आगे जो भी हो सकता था वो करके आगे आगे बढ़ते गए। तो जब बड़ी हुई तो कॉलेज में आई, तो कॉलेज में हमें लड़कों के साथ वगैरह बाहर पढ़ना था। तो अपना ग्रुप बनाया, सब कुछ हुआ। तो आगे पढ़ते पढ़ते फिर मुझे यहाँ आना हुआ। तो मेरी माँ ने बोला कि लड़की है, अकेली वहां पे जाएगी, तो उसकी शादी करवाओ। तो सेम टाइम जब मैं यहाँ आ रही थी, उसी टाइम पे मेरी शादी हुई, और ससुराल में गई, यू नो। और मेरी सास, अभी मैं बोलती हूँ, अभी नहीं है इस दुनिया में, पर इतनी अच्छी थी कि आपको माँ को भुला दे। अपनी बेटियों को वो बोले कि आप अपने ससुराल में, अपने घर में हो, ये मेरी नई बेटी है, अब आप अपना घर संभालो, ये हमारा घर संभालेगी। तो वो मेरे साथ खड़ी रहती थी। तो एक आपको हिम्मत, एक जोश मिलता है कि आपके साथ कोई खड़ा है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। और फिर मैं यहाँ पे आई। यहाँ आने के बाद अंग्रेजी, पढ़े लिखे तो थे, पर बोलने की, या क्योंकि एक आप छोटे शहर से, छोटे गांव से आ रहे, तो बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। तो यहाँ आके धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे। तो पहली बार जब मैं काम ढूंढने गई थी, तो मैं मैनहट्टन में, मुझे अपने रिश्तेदार कोई छोड़ के आए कि आप यहाँ पे काम ढूंढेंगे। तो मैं एक एजेंसी में गई काम ढूंढने के लिए, और मेरे पास ना तो पैसे थे, और ना तो पता था कि सबवे लेके कैसे वापस आना। और मुझे छोड़ के तो वो चले गए, फिर वापस आना था। तो इतना पता था कि इस ट्रेन में बैठना है, इधर जाना है। तो मैं ट्रेन में बैठी, तो मैं आगे निकल गई गलती से, क्योंकि पता नहीं था ना ज्यादातर। तो आगे निकल गई, तो आगे निकलने के बाद मैं ब्रॉन्क्स में पहुंच गई। तो मैंने देखा, तो मैंने बोला ये तो गलत जगह है। तो मैं सुनती रहती कि लोग क्या बोले। तो बोले कि यहाँ पे सेफ्टी का ख्याल रखना, ये है। मैंने बोला मैं वापस कैसे जाऊंगी, दूसरे पैसे नहीं है, ना तो फोन के पैसे थे, कुछ नहीं था अपने पास। तो फिर मैंने क्या किया, बाहर निकल के, पर मैं स्टेशन के बाहर नहीं निकली, स्टेशन में ही खड़ी रही। फिर देखा, घूमी। फिर मैंने बोला कि ये इधर से ट्रेन आई ना, तो वापस ऑपोजिट साइड से जाती है। मैं ऑपोजिट साइड जाके खड़ी हो गई, ट्रेन लेके बैठ गई। तो मैं अपने स्टेशन पे वापस उसी तरह से, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए कि मैं अंदर से घबरा रही थी, पर आ गई कि चलो, नहीं मैं पहुंच जाऊंगी। तो मैं पहुंच गई ऐसे करके। फिर मैंने घर आके बताया कि मैं ऐसे फंस गई थी। तो लोग बोले कि एक काम कर, अपने पास थोड़े पैसे रख, ये कर, ये कर, घर वालों ने बताया।
तो उसी तरह से एक वो पहला हादसा था। उसके बाद धीरे धीरे मैं काम पे लगी, काम करने लगी, ये किया। यहाँ आके मैंने ट्रैवल का थोड़ा कुछ कोर्स किया। उसके बाद मैंने ट्रैवल एजेंसी में काम किया। उसके बाद हम बच्चों का प्लान कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं मैनहट्टन में काम कर रही हूँ और लॉन्ग आइलैंड में रह रही हूँ, तो यहीं कहीं नौकरी ढूंढ लूं। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बैंक में बताया, तो मैं वहां पे गई। मेरी मैनेजर मेरी फ्रेंड बन गई, तो मैंने बैंक में पार्ट टाइम शुरू किया। धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और हिम्मत करके मैं एक पार्ट टाइम वर्कर से ब्रांच मैनेजर तक, बिजनेस डेवलपर ऑफिसर तक पहुंची, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से। तो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और मैंने इतना किया कि जब जिन लोगों ने मुझे बोला था कि एक गांव की लड़की, वो भी यहाँ आए बाद में, तो हम एक दूसरे को मिलते रहते थे। तो अब वही लोग मुझे बोलते हैं कि ओ तू तो बहुत होशियार है, बहुत आगे बढ़ गई ये। तो मैंने बुरा नहीं बोला, पर मैंने उनके मुंह पे एक बात जरूर बोली कि जो भी कुछ मैं आज हूं ना, आपकी वजह से हूँ। क्योंकि आपने वो जो टोना मुझे नहीं लगाया होता, तो मैं यहाँ तक ना पहुंचती, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया। तो वो चैलेंज से मैं आगे बढ़ सकी। तो कोई भी आपको कोई टोना बोले, तो उसका बुरा मत मानो। ऐसे समझो कि वो आपके एक जिंदगी का हिस्सा बनता है, आपको एक मौका देता है कि आप कुछ कर पाएंगे, आप हिम्मत दिखाओ, उससे आगे बढ़ो। तो ऐसे करके मैं बढ़ी। तो मैंने उनके मुंह पे खुद ही बोला और प्रणाम किया कि देखो, जो भी मैं आज हूं ना, आपकी वजह से हूँ। आपने जो उस दिन नहीं बोला होता, तो मैं यहाँ तक ना पहुंचती। क्योंकि मैंने उस दिन मन में तय किया था, मैंने किसी को बोला नहीं था, पर उसी चैलेंज को लेके मैं आज तक आपके सामने खड़ी हूँ। और उन्होंने बोला कि मेरी बेटियां है, वो आपसे सीख रही है। मैंने बोला जी नहीं, हमने आपसे कुछ सीखा, कि आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे चैलेंज लेके। और आप एक वुमेन है, हम सब, तो हमें एक ये करना है कि कोई आपको कुछ बोले तो बुरा मत लो, उसको पॉजिटिव लो, और उसको लेके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो सोचो, और जरूर कर सकते हैं। और जैसे नीरू जी ने बताया कि मैं बैंक में वगैरह काम शुरू किया, उससे पहले ना तो मुझे बिल भरना आता था, कुछ नहीं आता था। और इंडिया में कभी गाड़ी नहीं ड्राइव की थी, क्योंकि हम राजपूत घराने में से है, तो वहां पे ड्राइवर है, घर में नौकर चाकर है, ये है। तो कुछ नहीं आता था, खाना बनाना भी नहीं आता था। पहली बार खाना बनाया, तो मैं नाम नहीं बताऊंगी, पर हमारे रिश्तेदार थे, तो मैंने कुछ बनाया, तो बाहर से इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा बन रहा था, अंदर से कच्चा था। तो उन्होंने गा करके थाली फेंकी कि इसी तरह का खाना बनाती है। तो उस दिन मुझे रोना आया, पर मैंने बोला नहीं, मैं सीख जाऊंगी, मैं चेंज कर दूंगी। और वही चीज मैंने 2-4 महीनों में इतनी अच्छी बनाई कि वो लोग उंगलियां चाट के खा गए। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, तो हमें जो स्पेशली वुमेन, नो मैटर व्हाट कंट्री यू आर, और स्पेशली इंडियन वुमेन, हमें एक चैलेंज होता है कि हर बार सब लोग आपके सर पे हाथ रख के दबाते हैं, लड़की को दबाते हैं। पर ऐसे मत ले लो, आप करके दिखाओ कि नहीं, वुमेन आर स्पेशल, वुमेन कैन हैंडल मोर देन अ मैन। क्योंकि बंदे हैं, वो काम करते हैं आके, जैसे रोज जी ने बताया कि घर आके खाना खा के थक गए होते हैं, तो रेस्ट करते हैं, ये करते हैं। हम वुमेन है ना, हमारी ड्यूटी कभी खत्म ही नहीं होती है, 24 घंटे बिल्कुल ड्यूटी तो बिल्कुल होती। परफेक्ट, बहुत ही इंस्पायरेशन स्टोरी है। मैं इस प्रोग्राम को वुमेन एम्पावरमेंट की जगह इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ दी सक्सेसफुल वुमेन कहूँ तो ज्यादा मच बेटर रहेगा, क्योंकि आप सबने अपनी लाइफ शेयर की है। दिस इज रियली इंस्पायर। और प्रीत जी, एक आप है एग्जाम्पल, कि जो आप सब वुमेन को आगे ला रहे, तो आप एक रास्ता बना रही हैं कि सारे वुमेन को आप एक चांस दे रही है कि आप उनकी स्टोरी आगे ला रही है। दिस सो इज फर्स्ट ऑफ माय ऑल, वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि थैंक यू आपने सो ये मच। किया है। थैंक यू प्रफुल्ल जी। एक्चुअली
ये भी मेरा गुड लक है। मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे आप सब लोगों का इतना कोऑपरेट मिलता है कि मैं अपने आप को भी दिखा रही हूँ, और बाकी सब में आप जैसे कह रही कि आपको भी इस मंच पे इनवाइट कर रही हूँ। अपने आप को लकी समझती हूँ। बट मैं अगर अपनी बात कहूँ तो एज ए वुमन मैंने अपना जो लाइफ कैरियर था वो 16 की एज से शुरू किया, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर विद एक्सीडेंट। सो 16 से मेरा कैरियर ऐसा स्टार्ट हुआ कि आज तक मैंने सांस लेके नहीं देखा है। और मैंने बहुत कुछ किया, मेरे पास मैंने टीचिंग भी किया, मैंने डायरेक्टर भी बनी बोर्डिंग स्कूल की, मेरे पास मैंने एक नर्सिंग भी किया, मैंने कोई ऐसा काम एंकरिंग, होस्टिंग, एक्टिंग, कुछ भी, पोइट्री, ड्रामा, आर्टिकल, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। कोई भी गेम को छोड़कर मैंने कोई ऐसा फील्ड नहीं छोड़ा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि मेरी जो बेसिकली मैं जब टीचर थी तब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती थी, अभी भी मैं यही कह रही हूँ, और कल भी मैं यही कहूंगी, और मेरी बुक में भी मेरी जाने के बाद लोग यही पढ़ेंगे कि मेरी एक ही बात है कि जब भी एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसे बोला जाता है कि देखो देखो उसकी बेटी जा रही है, अरे देखो उसकी वाइफ जा रही है, उसकी बहन जा रही है ना, उनकी बहू जा रही है। जी वाई? आपकी अपनी एक पहचान क्यों नहीं है? पहचान बनाओ कर एक जरूर। बाप के नाम से, एक हस्बैंड के नाम के, एक भाई के, एक लड़के के नाम से आपको जाना जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं है कि बोले कि देखो देखो उसका बाप जा रहा है, देखो प्रितपाल का बाप जा रहा है, प्रितपाल का हस्बैंड जा रहा है, प्रितपाल के बच्चे जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं है? तो आप वुमेन्स में इतनी, लड़कियों में इतनी काबिलियत लेके आओ कि आप नहीं, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स हैं चाहे आपके इन लॉज है या कोई भी है, जी प्राउड फील करे आपका नाम लेने में कि हम जी उसके बाप हैं, हम उसके पेरेंट्स हैं, हम उसके इन लॉज हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरे को इस बात की खुशी भी है, अगर आप घमंड कहें जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन मेरे को है अंदर से जी प्राउड। जब मेरे को फोन आते बोलते कि हाँ वो प्रितपाल हमारे रिलेशन है, दूर दूर के रिश्ते, जैसे प्रफुल्ल आपने कहा ना कि मेरे को जी भी मिलते हैं दूर दूर से, जो मुझे नहीं जानते थे ना वो भी लोगों को बोलते हैं कि प्रितपाल हमारी रिलेटिव है। जी I feel proud. Yesterday, I got one more achievement from दमदमा साहब, तलवंडी साबो काशी से, साहित्य अकादमी से, जब उन्होंने मेरे पापा का नाम मेंशन किया कि सपुत्री सरदार मंजीत सिंह। तो मेरे को इतना अच्छा लगा उस चीज का। मैं जितनी भी अप्रिशिएशन लेती हूँ मोस्ट ऑफ में मेरा नाम लिया जाता है। तो कल जब मैंने वो अचीवमेंट हासिल किया, वो भी एक ऐसी एकेडमी से जो साहित्य अकादमी है, और गुरु गोबिंद सिंह के 52 वीर रस कवि के नाम के तहत वो अचीवमेंट देते हैं। तो मेरे को जब वो अचीवमेंट आया तो मेरे को इतनी खुशी लगी अपने पापा का नाम देके। मैं कहती मेरे पापा भी आज जहां कहीं भी होंगे उनको भी अच्छा जरूर लगा होगा, क्योंकि मुझे अंदर से खुशी हुई है। मेरा सारा ऑफिस भरा पड़ा अचीवमेंट में, लेकिन वो एक अचीवमेंट ऐसा है जिसमें मेरे पापा का नाम शामिल हुआ है, और उन्होंने अपनी बुक में भी बकायदा पेज डाला है मेरी बायोग्राफी का, मेरे पापा का नाम, मेरा सारा बैकग्राउंड डाला है। सो आई एम सो हैप्पी टू सी दैट। बहुत खुशी होती है, प्राउड फील होता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप सब दर्शकों ने सुना है कि ये सब वुमेन्स ने किस तरह से अपना एक मुकाम बनाया है, और ये इजी नहीं है, और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। नथिंग इज जी इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू वांट टू डू समथिंग। सो डॉक्टर रोज, मुझे लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं काफी लंबा खींच रही हूँ। आप नो चले। प्रॉब्लम हाँ बोले कुछ। ਜੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੋਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। बिल्कुल। ਇਹ ਮਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਲ ਦਾ ਫੂਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਨਾ, ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਟ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਜ਼ੀ, ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਆ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪ ਨਾ ਬੱਸੀ ਸਹੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾ ਦੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੰਗਲ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੋ ਨਾ, ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੂਮਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਲ ਬਿਤਾਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਦਾ। 90% ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆ 3 ਬੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ, ਈਗੋ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਡਰੱਗ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾर्ट करता ना, सारा वर्ल्ड सुखी हो जाऊगा, बिल्कुल पूरी बिल्कुल दुनिया बिल्कुल सुखी हो मैं सही जाएगी। आपके साथ एक बिल्कुल सही जोड़ना बोला चाह आपने। मैं तो एक जोड़ना सारे चाहती हूँ भैनों ਨੂੰ इसके ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ साथ। ਮਾਫੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਡ ਨਾ ਹੋਇਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆ। ਰੋਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵੋਮੈਨ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਮੈਨ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਘਰ ਨੂੰ वो उजाड़ भी सकती है। जी बिल्कुल तो सही कहा आपने प्रीतम जी। जैसे है कि लड़कियां, जैसे डिवोर्स केसेस हैं आजकल क्यों ज्यादा हैं, जी पहले क्यों नहीं होते थे? जब लड़की की पहले डोली चलती थी तो माता जी उसको यही, माता पिता यही शिक्षा देते थे कि अभी डोली उठी है, अर्थी अपने ससुराल से अच्छी उठेगी। आएगी, बिल्कुल आजकल की बिल्कुल माताएं
अपनी लड़की, अच्छा तेरी उधर नहीं बनी, आजा कार आजा, यू आर हाँ जी, वेलकम, बिल्कुल डाइवोर्स यही खाना है। पल पल की तो खबर देंगे, मैंने खाना खाया है, अपनी नहीं खाया है, औरत पानी ही पिया है नहीं जो पी। अपनी लड़की की जिंदगी खराब कर देती है फॉर द जी रॉन्ग गाइडेंस। सह दे के, सह नहीं बिल्कुल। देनी चाहिए, उसको सिखाना चाहिए पेशेंस। दूसरी चीज है जो सबसे हमने मिस की है, एक पॉइंट आज के वार्तालाप टॉक में, वुमेन को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान करना चाहिए। आई थिंक जगपाल राज जरूर। मेरे साथ हाँ जी मानेंगे। डॉक्टर जग, आप अगर हेल्थ के वुमेन लिए की जरूर हेल्थ बोलें। अच्छी होएगी, एजुकेशन उसको होएगी, तो तभी हाँ वो अपने घर में भी न्यूट्रिशियस खाना और उस नॉलेज के साथ अपनी हेल्थ अच्छी रख के तो अपने घर की फैमिली को भी तंदुरुस्त रखेगी। सो द मेडिकल बिल्स आर लेस, डॉक्टर्स विजिट्स आर मोर, यू फाइंड योर हाइजीनिक एंड और वो सारी चीजें उसी के निर्भर करती हैं कि अपनी हेल्थ करे, अच्छा खाना बनाए, हेल्थ कॉन्शियस रहे, योगा मेडिटेशन टू रन द फैमिली in proper track, and also not supporting the kids in right direction, but थोड़ा उनको भी कहो कि लड़कियों को कि पेशेंस रखो rather than to make the percentage of divorce less, you know, to make। हमारे टाइम तो होता था लड़का भी नहीं दिखाया जाता था, अरेंज वेडिंग होती थी, वी डोंट, एंड देन वी ट्राई हियर, पहले 4 साल तो वो डेटिंग करते हैं, 2 साल में डाइवोर्स हो जाता है। सो जी the things have to be, patience is very important, and that's the whole thing about it. And health for women, health is very important to run, to keep the whole show running. ये आप बिल्कुल नीरू जी आपने सही कहा कि अगर हेल्थ अच्छी, वुमेन की हेल्थ अच्छी होगी, घर की स्त्री की हेल्थ अच्छी है तो पूरे घर को तंदुरुस्त रखेगी और घर के जरूर। बजट में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। हमारा प्रोग्राम हम लोग चले थे 40 मिनट का लेके, लेकिन देखें कि 1 घंटा कैसे निकल गया, इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है कि लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया करती हूँ जो प्रोग्राम देख रहे थे और जो देख रहे हैं और जो देख रहे होंगे पहले बाद में भी। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे अच्छे आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं, मैं नाम नहीं पढ़ पाई क्योंकि स्क्रॉल हो गए, बातचीत ने इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैं खुद सुनने में बिजी थी। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, और आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट के लिए। ये कमेंट और ये आपकी सपोर्ट जो लाइक होती है, ये सब हमारे लिए एक तालियों का काम करती है, क्योंकि स्टेज पे कोई परफॉर्म करता है आप लोग तालियां बजाते हैं, तो जब हमारा ये लाइव शो चलता है इसमें आप कमेंट करते हैं, लाइक देते हैं, तो ये हमारे लिए तालियां हैं, ये हमारे लिए एक सपोर्ट है, हिम्मत है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एंड में मैं डॉक्टर जग को कहती हूँ, डॉक्टर जग प्लीज जाते जाते हेल्थ की कुछ टिप्स जरूर दें। प्रीत जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, सबने अच्छी अच्छी अपनी लाइफ स्टोरी बताई। हम सब लोग स्ट्रगल से आए हैं, लेकिन अब जब आ ही गए हैं यहाँ पे एंड अब प्रेजेंट में आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, इवन द यंगर लाइफ, वुमेन का काम है 10 काम इकट्ठे करना। यू कैन नॉट बी वन पर्सन, यू आर अचीविंग समथिंग एट द सेम टाइम, यू टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, यू टेकिंग केयर ऑफ योर जॉब, यू वर्किंग विद योर हस्बैंड, you're working with the children, and you're keeping the harmony and balance, which is something अपने आप आता है, ये नहीं कि कोई सिखाएगा। woman is a patient person, तो जब अपने में वो आ जाएगा ना, then we have to self love. After we have achieved the balance with the family, अपने आप को प्यार करो, then you can give it to others. When you love yourself, and one way of loving yourself is keeping your health. If you keep healthy, even if there is no time, उन्होंने बोला प्रेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेयर टू कीप योर माइंड बैलेंस। कोई गाने गाता है, कोई डांस करता है, ये भी हेल्थ के टेक्निक्स हैं। कीप हेल्थी, यू फील गुड, फीलिंग गुड इज सो इम्पोर्टेंट, देन यू गिव टू द अदर्स। अगर अपने आप ही तुम क्या है, सो हेल्थ के लिए आपने क्या करना है, डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना है, क्योंकि आपकी ब्लड शुगर चेक होगी। वुमेन, इवन द यंग वुमेन कैन हैव डायबिटीज, तो आजकल कुछ पता नहीं लगता जैसे खाना हम खाते हैं। सो एवरी 6 months इन द बिगिनिंग यू गो गेट योर ब्लड चेक कि एनीमिया ना हो। एनीमिया होता है बिकॉज वी ऑल हैव पीरियड्स व्हेन वी आर यंग, एंड इट्स सो कॉमन, आई कांट इवन टेल यू, इट ड्रैग्स यू, मेक्स यू फटीग्ड, आप ना घर का काम कर सकते हो, गुस्सा आता है, देन यू गेट इरिटेबल। सो दैट्स few reasons you got to go to the doctor, because you get your blood check, your sugar check. अभी हार्ट इतना कॉमन नहीं है young women, but it will come. So there are a couple of things you have to maintain, and the most important scary thing is cancer. Cancer is coming in the younger and younger women, especially the country we live, the food we eat, the way are rushing all the time for, you know, हम canned food खाते हैं, नहीं fresh बनाते हैं, so all these things we all know.
So the breast cancer awareness is very important. Once a year after the age of 40 and age of 35, if your family has breast cancer, anybody, your maternal aunt, आपकी niece, आपके जो cousin brother, cousin sister, men or women, doesn't matter. If there is a history of cancer, there are some genes that can be detected to find the cancer early. So breast cancer awareness, very important. And I think equally important these days is colon cancer awareness month. This is colon cancer awareness month. This month we'll be talking in a couple of places. Colon cancer, हम सब लोग ना टेस्ट कराने से डरते हैं. After the age of 45, this is the guideline. All of us over the age of 45 should go for colonoscopy. Should means soon it will be a must because we are eating the food here. So these two cancers are very important in all of us, women and men. There's also a lung cancer, but because we don't smoke, most of people don't smoke, the women, so there are chances come in, and the GYN cancer. So just be aware of these cancers. There are many other things to be aware of, but ये अपने health को ख्याल रखें. And once you have your health, you can win anything you want with persistence, your family, your life, your job, because we are happy people with the health. Thank you, Preet ji, and thank you, everybody. थैंक यू सो मच जग जी, आपने बहुत अच्छे टिप्स बनाए, और थैंक यू जो भी सुन रहे हैं. और हमारी एक बहन और कुछ लोग हमारे और भाई बंधु ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम को प्लीज दोबारा करें और करते रहें ऐसे प्रोग्राम. तो जी ये हाँ, जरूर करें प्यार है, आप। आप लोगों ने प्यार से सुनना है. और वाकई में मैं दिल से कह रही हूँ कि दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग प्रोग्राम फॉर मी. आई hear a lot of inspiring stories. You all are Praful ji, नीरू जी, रुचि, जग जी, आप लोगों ने जो जो बताया ना, सच में और एक. प्रीत जी, हाँ मुझे एक बात बतानी थी कि जैसे रोजी जी ने बताया कि जरूरी नहीं है कि आपको डिग्री होनी चाहिए. बिल्कुल. आई डोंट हैव अ सोशल सर्विस डिग्री, पर मैं कोर्ट में जाती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बहुत हेल्प करती हूँ, कैंसर पेशेंट के लिए जैसे जग जी ने बताया, तो बहुत सारे कैंसर पेशेंट, एंड आई वर्क विथ लॉट ऑफ हिस्पैनिक कम्युनिटी, हेशियन कम्युनिटी और हमारी मैं भी देसी हूँ, कम्युनिटी. पर फुल प्रूफ मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, पर फुल ने मुझे एडवांस जाके एक ही दिन में जाके सेटअप करके ले दिया अपॉइंटमेंट कि आप थैंक यू जी. जाओ. सो प्रूफ हूँ मैं आपका. जज्बा होना थैंक चाहिए, यू जी. थैंक यू. हेल्प करने का हम जज्बा देखो होना एक दूसरे को मदद करनी होती है. बिल्कुल कहीं पे बिल्कुल. मैं कर सकती हूँ, कहीं पे आप कर सकते हैं, कहीं That's पे why we rise. रोजी जी कर सकती है, और नीरू जी और अंजना जी, डॉक्टर जग जी, कोई भी, हम एक दूसरे को, वही हमारी कहते जो हैं कि we rise by कनेक्शन lifting है, other हम एक women. दूसरे को हेल्प कर मैं सकते हैं, एक नहीं कि छोटा एक सा दूसरे एक को ईगो दिखाए. ट्रुथ और एक जोक कह लो है, लेकिन ट्रुथ मैंने किसी सुना, नो आएगी तो सास दी लत्ता कुटेगी. ये बड़ा कहावत है ना अपने इंडिया की. नहीं, नहीं, बहू ऐसे आएगी सास की टांगे दबाएगी. अरे भाई, सास को इतना बीमार ही क्यों करना है जो टांगे उसकी दबानी पड़े? क्यों ना वो इतनी स्ट्रोंग हो कि वो दूसरों की टांगे दबाने के काबिल हो. सो वो मतलब इतनी स्ट्रांग वही हो बात किसके वही साथ आ जाती है माउंटेनिंग मुंह पे करने जाए. कि वो सास है, जब बहू है, जब ननद है, जब भाभी है, वो अपने आप को हेल्थ वाइज भी अपना ध्यान रखे. जैसे डॉक्टर जग ने बताया, समय समय पे अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ है तो आपकी फैमिली स्वस्थ है. इसका एग्जाम्पल जी हाँ. जग और बोलते प्रीत हैं जी कि एक जो कि 16 साल संदेश का देना था. एनर्जी रखती हैं. प्रीत जी एक संदेश देना था कि बिल्कुल. हम सब एक वुमन है, मैं भी एक वुमन हूँ, और मैंने एक बीड़ा उठाया है कि हमारी जो इंडिया में देसी गांव में लड़कियां हैं, कोई विडोज है, कोई लड़कियां की जिनके माँ बाप की परिस्थिति ठीक नहीं है, तो उनको हम आईटी का एजुकेशन दे रहे हैं. आईटी इज टुमारोज फ्यूचर. सो यस. हम आज का तो सोच रहे हैं, पर हम कल का, आने वाले कल का सोच रहे हैं. तो बिल्कुल, उसी में हम उन लड़कियों को एजुकेशन दे रहे हैं, और मेरे साथ मेरी कंपनी के बहुत सारे सपोर्ट्स हैं कि जिसकी वजह से हम उसको एजुकेशन दे रहे हैं, घर पे बैठ के वो काम कर सके, अपने आप को फाइनेंशियली सशक्त बना सके, कि जिसकी वजह से उनको सहना ना पड़े. बिल्कुल तो बिल्कुल. हम वो कर रहे हैं, तो हम हेल्प कर रहे हैं बहुत लोगों को. तो हम ऑल ओवर इंडिया हेल्प कर रहे हैं, कि नॉर्थ में है, साउथ में है, पंजाब में है, गुजरात में है, कोलकाता में है. तो हर एक वुमेन टेकिंग केयर ऑफ इन लॉज, टेकिंग केयर ऑफ बच्चे, सबको हम देते हैं कि आप भी एक
पावरफुल वुमन है, आप अपने हिसाब से काम करो और घर चला सकते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। डिपेंड नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आप बहुत ही ग्रेट वर्क आप जो कर रहे हैं, ये बहुत आईटी हमारी कल का फ्यूचर नेटवर्किंग Yeah. ही है। सो दिस इज द जो एक कह लें कि आने वाले समय के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं। आप एक अच्छा बच्चों को फ्यूचर प्रोवाइड करवा रहे हैं। दिस इज रियली गुड। आई विल कन्वे दिस मैसेज टू एवरीवन एंड वी विल डू दिस प्रोग्राम इन आई मीन हम लोग फ्यूचर में भी एक देखिए, एक प्रोग्राम मैं ऐसा मैसेज बहुत करेंगे। जरूरी देना चाह रही हूँ, जो कि हम आजकल सब लेडीज ने यहाँ पे कुकिंग के लिए लेडीज रखे हैं, जो कि हिंदुस्तानी है। ओके, उनके हमने उनको बड़ा सहूलियत दी है। चलो वो घर में काम करती है, हम उनको पिक करते हैं, हम उनको ड्रॉप करते हैं, क्योंकि ड्राइविंग ये ट्रेडिशन उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं दे रहे। वी आर फीडिंग देम, दे शुड बी। और वो कैश पैसा ले जाती है, बट दे डोंट नो देयर फ्यूचर इज इन डेंजर। कल कुछ भी समय के साथ हो सकता है ना। उनको ड्राइविंग आती है, हम उनको पैम्पर करते हैं। वी वांट देम टू इनकरेज टू लर्न ड्राइविंग, लर्न इंग्लिश। यहाँ ट्यूशन के पैसे मिलते हैं, तुम्हें लोन मिलता है, तुम पढ़ लिख के अपनी एक पहचान बनाओ, नर्सिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कोई कोर्स कर लो। घरों में जाके अभी तो तुम्हें 2 पैसे मिलतेंगे, पर आगे तुम्हारा फ्यूचर बहुत डार्क है। बिल्कुल I tell बिल्कुल, मैं अपना ही एक किस्सा बताऊं, जैसे नीरू जी let's बोल रही है। पहली बार जब मैं ड्राइव करना सीखी ना, मुझे गैस भरने गाड़ी में नहीं आती थी। मैं गैस स्टेशन गई और मैं वहां खड़ी रही और देख रही हूँ कि ये पंप है, ये गाड़ी है, कहाँ पे टैंक है मुझे पता नहीं था, और कैसे गैस भरना। मैंने अंदर जाके बंदे को बोला कि मुझे गैस भरनी है, तो बोला कि ओके ठीक है, पैसे दे दे। मैंने पैसे दिए, सब कुछ किया। मैं खड़ी हूँ, मुझे आता नहीं था, तो बंदा समझ गया कि मुझको आता नहीं है। वो आके मुझे दिखा के गया, बाहर आके, एक स्पेनिश लड़का था, तो उसने पहली बार मुझे दिखाया कि इस तरह से गैस भरते हैं। तो मैं पहली बार उनसे सीखी। तो एक बच्चों से भी आप सीख सकते हैं कि हो सकता है। अब मैं खुद सब कुछ कर सकती। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, नीरज जी, आपने सही कहा। जो भी वोमेन्स घर में काम कर रही हैं, सिर्फ डॉलर में ना रहें कि आप लोग कि हाँ हम लोग इतने डॉलर कैश में ले गए, इतना पैसा आ रहा है, बल्कि अपने फ्यूचर को भी देखे। एनीथिंग हैपन एनी टाइम। सो यस, और आपको छोटी छोटी चीजें सीखनी चाहिए। I've seen those बिल्कुल ladies who have not worked before, so now they're at the age of 65, 70, they're not getting any pension, they're not getting any social security, they lost their husbands, और उनको पता नहीं कि इंडिया हम जाएं कि क्या करें। क्या So करें। थोड़ा सा वो भी हमें उनको एजुकेट करना है। अपने सेल्फिश के लिए हम अपना काम नहीं कराएं। I have someone coming to someone's house, और मैंने उसको बहुत ज्यादा encourage किया है कि तू काम भी कर ले, पर पार्ट टाइम अपना रात की कोर्स करना शुरू कर दे, कोर्स which she करना शुरू। started to implement, बिल्कुल and she बिल्कुल learned नीरू जी, driving. हम आपका ये मैसेज सबको कन्वे करेंगे और मैं सभी से I कहूंगी want to कि give one प्रोग्राम good example, नीरू जी। आप मिले हैं उसको, अंजलि जी को, and she's 85 and I'm proud of it that internationally she's the oldest woman who got her PhD degree, and that's हमारी देसी woman है अंजलि जी, मराठी woman है। क्या You बात है, can do बहुत anything भाई। you want if you Yes, want to. so that's a good Yes, example I Age is finished the to word share on design कि international everything level. is possible if you want to do If you something good. do it, एजुकेशन Yes. में you कोई should एज not, लिमिट नहीं होती you है। should not be बिल्कुल, No. ashamed. एजुकेशन की कोई वो एज नहीं है, कोई एवरी डे इज अ लर्निंग लेसन। everything. Yep. तो हमें You प्रोग्राम can फिनिश करना होगा क्योंकि हाँ हम जी। काफी लंबा you ले can गए हैं। तो मुझे लगता है हमारे दर्शक भी थक गए होंगे कि ये तो I- शुरू No, but हो रही thank you है। so much, Preeti. मजा ने इतना आ रहा प्रोग्राम में कि दिल नहीं कर रहा खत्म होने का, लेकिन हम दोबारा जरूर करेंगे ये प्रोग्राम। और मैं एंड में ये मैसेज सबको देती हूँ कि भाई हमारी जो जितनी भी यहाँ पे आपने स्टोरी सुनी है, इंस्पायरिंग, ये ट्रूथ है, तो आप प्लीज इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि आपके घर की बेटी, बहू, माँ सभी जी। सुन सके और उनको भी इंस्पायरेशन मिले, उनको भी एक अंदर से हिम्मत मिले कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं भी कर सकती जरूर तो ये जरूर। प्रोग्राम को जरूर शेयर करें, आप लोग भी शेयर करें। और अगर किसी भी वुमेन को हेल्प चाहिए हेल्थ केयर रिलेटेड, हमारे पास डॉक्टर जग्गी हैं। डोमेस्टिक वायलेशन के लिए हमारे पास प्रफुल्ल जी भी हैं, डॉक्टर रोज जी भी हैं। और इसी तरह हेल्थ लाइन और किसी भी तरह की हेल्प के लिए डॉक्टर नीरू जी हमारे पास है। सो आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको जरूर मिलेगा। बट मैं एक बात कहूंगी जाते जाते कि प्लीज मैसेंजर कॉल नहीं करें, क्योंकि हमारा ये सब बिजनेस रिलेटेड है। तो मैं खुद कभी पर्सनली मैसेंजर यूज नहीं करती हूँ, वेरी रेयर।
सो इसलिए आप व्हाट्सएप करें, और प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी अपना बायो जरूर भेजें पहले कि आप कौन है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को 2-4 लोगों के कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि आप हमारा इंटरव्यू लें। तो अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनको भी बोलूंगी आप अपना बायो रिकॉग्नाइजेशन भेजें कि आप है कौन, क्या कर रहे हैं, और किस तरह का आप काम कर रहे हैं, किस तरह का आप चाहते हैं लोगों को बताना, क्या बताना चाहते हैं। तो वी विल हैप्पी टू keep in Agree. our stage, and we will show you your talent or whatever you're doing toward इस इंटरनेशनल प्रोग्राम। सो आपको जरूर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम कोई आपसे फीस चार्ज नहीं कर रहे, और फीस चार्ज हम करते हैं सिर्फ मार्केटिंग प्रोग्रामों की। Yeah. ये हमारा कम्युनिटी प्रोग्राम है, थैंक यू। तो इसके लिए तो मैं खुद लकी हूँ कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। इस वक्त प्रोग्राम काफी लंबा चल गया, और थैंक यू फॉर पेशेंस। Thank you everybody. Praful ji. Thank you. एक बिग क्लैप हाँ फॉर जी। प्रीत जी कि वो Yes. वुमेन इंस्पिरेशन कर रही है। थैंक यू सो Thank मच। Thank you so much. और इस प्रोग्राम के जितने भी अवार्ड अप्रिशिएशन है वो आपको जल्दी हम बताएंगे, और हम फिजिकली इवेंट करके उसमें आप सबको देंगे। Very good. No need of arts, हाँ Preet जी। ji. थैंक यू। Thank you so much. Share Thank our you everybody. experience. Thank you so much. Happy Namaskar, Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Assalamu alaikum. Good morning. Happy rainy Saturdays to everyone. Yeah. थैंक यू जी। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।